Good morning. Yesterday we have done definite integral by using properties. There are 7 properties in your book. These properties we want to use now. Yesterday also we have proved also and did some questions based on these properties. Okay. This exercise 7.11, it is only based on these properties. You have to memorize also these properties. Just I am just taking revision of these properties. The first property was you have to change only the variable, है ना. इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना है. P0, we have given the name of this property. In the P1 we interchange the limit, the value of the integral function get changed by minus sign. Okay. In the second property we have given the name in between there. जो हमारा पॉइंट है हमें इंटीग्रेट करना है. नेट ऑफ कर ले. अरे ऐड हो गया. तो ये आवाज कैसे आ रही है? हेलो हेलो. यहाँ पर देखो बेटा, अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि आप ब्रेक ले सकते हैं. P2 प्रॉपर्टी P3 में जो हम इन दोनों का सम है a प्लस बी माइनस एक्स, है ना, इट इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स. फोर्थ प्रॉपर्टी, wherever we have the lower limit 0 and upper limit we can subtract with the function. In place of x we write a minus x. Fifth property, 0 to 2a we can write in two parts. First part 0 to a fx and second part 0 to a f 2a minus x. If f 2a minus x is equal to fx, then it becomes 0 to a fx. Now if it is equal to minus fx, then it becomes 0. Lower limit and upper limit are same, but difference of the minus sign, then we can write twice if it is a even function. Otherwise we write 0 if it is a odd function. So you have to memorize these all 7 properties. Wherever you want to use, you have to mention which property you are using and what is the property. In your examination you have to write complete property. Here you can write the name only. Okay, it is sufficient. Up to 6th question we have done yesterday. Just see the question number 7. In question number 7, we have x 1 minus x to the power n, 0 to 1, 0 to 1, x 1 minus x to the power n dx. So which property we should use? Okay. इसके अंदर हम जो है ये जो प्रॉपर्टी है a माइनस एक्स, इस पे भी हमने अधिकतर क्वेश्चंस में पहले भी ये वाली P4 का सबसे ज्यादा यूज किया है. जब भी कभी लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट जो भी हो, तो हम इसके यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आप जब भी अभी लोअर लिमिट 0 हो तो आप a माइनस एक्स यूज करके देखो, हो सकता है हमारा उससे solution possible हो जाए. 0 to 1, in place of x we are writing 1 minus x. Here also we are writing in place of x 1 minus x. Okay, to the power n dx. Just see here 0 to 1, 1 minus x, 1 minus plus x to the power n dx. You can cancel minus 1 to 1. Then it becomes 0 to 1,
1 minus x to the power x to the power n. You can multiply and integrate, है ना? Integrate में we cannot use the product rule or integration by parts. There is no need to use that. If you multiply, you will get the integrable form 0 to 1 x to the power n minus x to the power n plus 1. Now we can integrate this one. What will be the integration? X to the power n plus 1 divided by n plus 1 minus x to the power n plus 2 divided by n plus 2. Now you have to put the value 0 to 1. If you put 1, you will get 1 upon n plus 1. Here you will get 1 upon n plus 2. If you put 0, you will get the answer 0. This integration is possible. We have done, the solution is completed now. So what we have done, we have used this property, 0 to a fx dx. So after using this property, it becomes as into integrable form. We get this form which is easily integrable. इसको हमने आसानी से इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन पता चल गया. तो यहाँ पर भी आपकी लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, तो उसमें आपको इस प्रॉपर्टी के यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अधिकतर क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज होगी जब भी कभी लोअर लिमिट 0 हो. ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये सारी प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं. अब मैं इस सबको रब कर रहा हूँ. ठीक है, अब आपको ये सारी प्रॉपर्टी, चलिए अच्छा आज लिखी रहने देते हैं. अभी आपको पता चल जाए कौन सी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी. इसको बार बार आपको देखेंगे, ठीक है, बार बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी तब ये याद होगी. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर 7 जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 8 आल्सो. इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव 0 to pi by 4 1 log 1 plus tan x. ठीक है, इसमें हम प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं a माइनस एक्स 0 to pi by 4, है ना, यहाँ पर भी हम p4 प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. देन इट बिकम्स log 1 log pi by 4 minus x log tan pi by 4 minus x tan pi by 4 minus x dx. हेलो, हाँ संजय सर, हेलो. यहाँ पर हम tan a माइनस b का फार्मूला यूज करते हैं. तो क्या फार्मूला होगा? log 1 plus tan pi by 4 minus tan x, है ना. tan a माइनस b का फार्मूला क्या है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 plus tan a tan b. तो tan a 1 plus tan a tan b tan pi by 4 और tan x. तो 0 to pi by 4 log 1 plus in tan pi by 4 the value 1 minus tan x. ये नहीं 1 plus tan x है. अगर हम ऐसे में लेते हैं तो 1 plus tan x और 1 minus tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 plus tan x. ये tan x से आप ये tan x कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू थी इसको अगर हमने जो आपका ये टर्म थी यही टर्म रिपीट होके यहाँ पर आ रही है. कैसे आ रही है? देखो यहाँ i इक्वल टू 0 to pi by 4. ये 1 1 कितना हो गया? log 2 हो गया. log 2 को तो हमने एज इट इज लिखा है माइनस 0 to pi by 4. ठीक है, log
ये डिवीजन में जो आपकी टर्म है tan x, ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस tan x। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया log m अपॉन n, तो log m माइनस log m, यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना है 2 है, log 2 हो गया, माइनस n की जगह we have 1 plus tan x, then it becomes log 1 plus tan x, which is equal to the starting function, that is I. So you are seeing here, if we put the value I here, so I we gave the name, so it becomes 2I. So integration of this function will be only x, because it is a constant term, so we have to put the value of 0 to pi by 4. If we put pi by 4 here, so 2I equal to pi by 4 log 2. So we can divide by 2, so I equal to कितना हो जाएगा pi by 8 log 2. This integration is complete now. So what we have done, we have used the property, fourth property P4, है property in numbering it is a fifth property, but we have used the property P4. We apply a minus x tan a minus x, then it becomes tan a minus x, x minus y, a minus b formula we have applied here, tan a minus tan b 1 plus tan a tan b. By putting the value of tan pi by 4, which is equal to 1, we have taken the LCM. After getting the LCM, this 1 plus tan x plus 1 minus tan x, we have cancelled this tan x term, so it becomes 2 upon 1 plus tan x. So we have log m upon n form, so log m minus log n, okay, which is equal to, which we have started in the beginning. So we can take the same value, so we can take to the left hand side, it becomes 2I. We have integrated only this term, which is constant term x. We got pi upon 4 log 2 and divided by 2, we get this integral function equal to pi upon 8 log 2. तो इस तरीके से हमने अभी देखा, आपने 7th क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी यूज की और 8th प्रॉपर्टी में यही यूज की। बहुत सारे क्वेश्चन में जो शुरू में किए थे हमने 1, 2, 3, 4, इनमें भी हमने यही प्रॉपर्टी यूज की थी। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज में आ रही है, P4 प्रॉपर्टी। देखो बेटा, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन हमें लगता है मुश्किल है, वो हम क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है, लेकिन 9 क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी यूज होगी, तो आप आराम से कर सकते हो इसी में, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, इट इज एक्जेक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 और 9, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, फ्रैक्शन पावर उसमें n थी, इसमें पावर 1/2 है। Question number 10 is different, but we have to use the same property here also. Just I am doing the question number 10. Question number 10 है आपका 0 to pi by 2 2 log sin x minus log sin 2x minus log sin 2x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हम प्रॉपर्टी के यूज नहीं करते हैं, then its integration is very difficult, but by using the property it becomes very simple. So how we will solve that? I equal to 0 to pi by 2 2 log sin x, you know the formula of sin 2x, है ना। So we have put the formula of sin 2x, which is equal to 2 sin x cos x, and break the log m minus n का फॉर्मूला लगाया, तो log 2 minus log sin x minus log cos x। हमने क्या किया इसमें, log इसको sin 2x को हमने 2 sin x cos x लिख दिया है ना। तो log m n p है, तो क्या हो जाएगा
अब इसको क्या लिखेंगे, log m plus log n plus log p, but minus sign is before the term, so all terms will be negative. अब ये तो both the terms are same term, so we can subtract that. So I equal to 0 to pi by 2, ठीक है, log sin x minus log 2 माइनस log cos x, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टर्म 1 2 3 4 थी, 4 का हमने 3 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम आप इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं कि पहली वाली टर्म को चाहे आप सेपरेट में लिख दो, इसमें a माइनस ये p4 वाली प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग अगेन ना, in so many questions we have used earlier, okay, in this question we are using only in this term, not all terms. If we use this property 0 to pi by 2, then log sin 90 minus x, ना, sin pi by 2 minus x, ठीक है, we have used only in this function, but minus log 2 we have written as it is. We have to integrate also, so we are writing dx, no, there is nothing, we can integrate 1 only, and minus log जीरो टू पाई बाई 2, है ना, वी हैव रिटन 0 to pi by 2 लिमिट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये sin 90 माइनस क्या होगा, ठीक है, log cos x, ये टर्म हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा फिर हमारे पास, I इक्वल टू हमारे पास बचा माइनस log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 और 0 माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा क्या आंसर हुआ, माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको आप माइनस के साइन को आपकी बुक में शायद आंसर में ऐसे लिखा हुआ है पाई बाई 2 log, ये माइनस जो साइन है वो 2 की पावर माइनस 1 लिख दिया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 को 1/2 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी डू लाइक इन दिस वे, यू कैन लीव हियर ओनली आल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, हमने प्रॉपर्टी, यहाँ तो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज किया, ये जो क्वेश्चन था सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, sin 2x का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x और cos x, because it is written in the log, so we have separated with minus sign, because minus sign before that term, ठीक है। After that we have used the property in the first term only. If we use all here, so we cannot use because it is a constant term. If we use here also, then it changes to sin x, so we cannot cancel. So we have, that's why we have used only in one term. Okay, after using in one term, we get the same term with opposite sign, so we have cancelled it. Okay. After that, we get the only one term. Integration was very simple, and integrated and put the limits and got the answer. चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है, फिर उसको करते हैं। ये क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बता देते हैं, 11 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 22 तुम्हारा नहीं हुआ है, 22 साइन स्क्वायर है, देखो बेटा ये माइनस पाई बाई 2, यानी कि हमारी जो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, माइनस a टू a f x dx,
अगर ये 8 is a even function, then we can twice the limit, है ना. 8 is a even function, you know, if you put in place of x minus x, so sin minus x is equal to minus sin x, but it is in square, so it will be even function. You can use twice 0 to a, यानी कि in place of a we have pi by 2, then it becomes sin square x dx, है ना. So we have changed the limit. Now we are applying the limit P4. P4 limit मतलब a minus x. If we use this limit, then it becomes 0 to pi by 2 cos square x. Because cos sin 90 minus x will be cos x. After that, we are adding both the first and second. We are adding these two terms. This is also equal to I. Okay, if we add both the terms, you will get 2y equal to, why we are adding, it will be clear now. 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x, you know very well, it is equal to 1 dx. Integration of 1 will be, you can cancel 2 also, I equal to x means pi by 2, है ना. इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 का x हो गया. अगर हम अपर लिमिट रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, pi by 2 हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आपका आंसर हमें पता चल गया. उसके बाद देखो बेटा कौन सा क्वेश्चन बताएं. ये है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 मैंने बताया. 12 में देखो x को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, जीरो टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. देखिए वैसे तो 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं. प्रॉब्लम जो हो रही है वो x की वजह से आ रही है. तो x को रिमूव करने का तरीका क्या है, जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी P4 प्रॉपर्टी. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने सो मेनी क्वेश्चंस में वी हैव यूज्ड अर्लियर. तो a माइनस एक्स यूज करते हैं तो I इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx. अब हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया. 2i इक्वल टू 0 टू पाई, ये 1 sin 90 minus theta 180 minus theta will be sin theta. So denominator will remain same, 1 plus sin x. Numerator you can add x plus pi minus x. x से x हमने ये कैंसिल कर दिया. तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर से हमारी जो है वेरिएबल खत्म हो गया. अब कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो वी कैन इंटीग्रेट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1 minus sin x in numerator and 1 minus sin x by denominator. What will you get? This type of question you have done in the first exercise also. 2i equal to 0 to pi we can write here 1 minus sin x. ठीक है, a plus b और a minus b it will be equal to 1 minus sin square x, है ना. 1 minus sin square x is equal to cos square x. You can divide both the terms separately. cos square x इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, cos square x से इसको भी डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इट इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी कि tan स्क्वायर x और sec x tan x. तो tan स्क्वायर x सॉरी 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x is equal to sec square x. So integration of sec square x will be tan x or sec x minus tan x will be equal to sec x. The integral part we have completed. Now you have to put 0 to pi. If you put pi here,
you will get tan pi equal to 0 or sec pi is equal to -1 becomes 1 only. If you put 0, tan 0 0 and sec 0 equal to 1 है ना, sec 0 equal to 1 but it minus it becomes +1 यानी कि 2 pi यानी कि 2i is equal to 2 pi, तो i equal to कितना हो गया आंसर पाई हो गया। यहाँ आप लिमिट पुट करनी है जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप वैल्यू निकाल लो। tan पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और sec पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो गया। फिर माइनस लेने के बाद फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे, तो लोअर लिमिट माइनस लेने के बाद करोगे ये तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो sec 0 कितना हो गया 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2i से हमने ये वाला 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो i की वैल्यू पाई होगी। तो इसमें जहाँ पर भी कभी आपका x आता है न्यूमरेटर में, x को रिमूव करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी P4 जो प्रॉपर्टी है उसके बाद हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इनमें अधिकतर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यही प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हुई है 90% क्वेश्चन में, लेकिन कौन सी भी प्रॉपर्टी कहीं भी आप यूज कर सकते हो, इवन और ऑड वाली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो उसके बाद बेटा 12 क्वेश्चन मैंने बताया, 13 वाला देखो -a to a है, इट इज ए ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। आप शो कर सकते हो ऑड फंक्शन है, वाई बिकॉज f - x इज इक्वल टू -f है। फिर आपका 16 क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में 0 to 2 pi cos x to the power 5 है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। चलो 14 वाला भी बता देता हूँ। बेटे यहाँ पर देखो i इक्वल टू ये है आपका 0 to 2 pi cos x to the power 5 है, तो लोअर लिमिट अगर आपकी 0 है, ठीक है, लोअर लिमिट अगर आपकी 0 है तो हम ax माइनस वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो इसको हम जो है देखो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी कौन गई ये वाली, इसको देखो ये प्रॉपर्टी है ना 0 to 2a fx dx है ना, इसको हम ट्वाइस कर सकते हैं 0 to fx dx इफ 2a - x, अगर अपन में लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू सेम आती है, अगर cos 2 pi - x कितना होता है cos x ही होता है, तो यू कैन एंड हाफ द लिमिट, अपर लिमिट को क्या करना होगा हमें हाफ करना होगा, तो वो ट्वाइस करेंगे 0 to a करेंगे fx dx, fx कितना है यहाँ पर cos 5x dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप द्वारा देखो cos pi y - x यूज करते हैं अगर हम इसके अंदर, तब ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, तो अब ये कितनी वैल्यू आ रही है 0 to pi अगर हम पुट करते हैं, अब द्वारा अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, है ना, द्वारा अगर हम पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो अगर हमने यहाँ पुट किया अगर माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। देखो अगर अपर लिमिट कितनी, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है 2 है, 2 का मतलब है यहाँ पर जो भी लिमिट है ना 2a, इसको आप लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो 0 × 2 × π/2, एक ही जगह कितना है, एक ही जगह कितना आ रहा है यहाँ पे π/2 आ रहा है, लेकिन आपको पुट कितना करना होगा सब चेक करने के लिए पूरा 2a पुट करना है, तो देखो यहाँ पर cos pi - x बराबर है -5 है ना, ये इक्वल हो जाएगा -cos
5x ना, माइनस कॉस टू दी पावर 5x इक्वल हो रहा है ना, तो ये देखो f2 माइनस एक्स इक्वल हो रहा है माइनस fx। तो जब ये ऑड हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी पहली बार हमने यूज की है जिसमें वैल्यू ही 0 हो रही है, लिमिट ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है P6 का। ये कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज में आई है वो P4 वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 to pi by 2 sin x minus cos x 1 plus sin x cos x। ये है बेटा, है ना। तो 0 to a, अगर हम इसमें जो है प्रॉपर्टी कौन सी यूज करें, प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर a माइनस एक्स यूज करते हैं। अगर a माइनस एक्स यानी P4 वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आई, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 to pi by 2 बोले देना फाइनल्स की प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos तुमको तो वर्बली बोलना है, वर्बली तो बोलना है, हो जाएगा। तो भी कौन सा मैं डाल दिया भाई। हेलो संजय सर, हेलो। हाँ जी हाँ जी। मैडम आपकी आवाज कंटिन्यूअसली आ रही है पूरी क्लास, पूरे पीरियड में, आपने आवाज अपनी बंद नहीं की। देखो बेटा यहाँ पर ये आई और ये आई है, तो इसको हमने दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस sin x से प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x से माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा। अगर न्यूमेरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ भी हो चाहे, ठीक है, एक्सेप्ट 0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फंक्शन की, 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने 15 भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं 16 क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी टाइम बचा है तो आज कोशिश करते हैं एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 16 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, 0 to pi log 1 plus cos x, log 1 plus cos x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमने क्या किया, a माइनस एक्स वाली फोर्थ प्रॉपर्टी के यूज किया, i इक्वल टू 0 to pi log 1 i माइनस यानी कि 1 माइनस cos x हो गया, ठीक है, dx। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, cos x a माइनस एक्स ना, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, cos पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस cos x। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद क्या होगा, 2y इक्वल टू 0 to pi log, ठीक है, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो m इंटू n करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो गया, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। So you can write 2i equal to 0 to pi log sin square x। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको आगे लिख दिया log sin x। ये 2 से हमें ये 2 कैंसिल कर। अब उसके बाद अब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज दोबारा किया, कौन सी प्रॉपर्टी का, P4 का, है ना। यहाँ पर भी हमने P4 प्रॉपर्टी यूज की थी, यहाँ पर दोबारा यूज कर रहे हैं 0 to pi log पाई माइनस, अच्छा P4 का यूज नहीं कर रहे हैं हम इसका यूज करना चाहते हैं जहाँ पर लोअर लिमिट अगर 0 है, ठीक है। अगर ये f
जो पुट करते हैं लिमिट को एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, लॉग साइन पाई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू लॉग साइन एक्स ओनली, है ना। तो यू कैन ट्वाइस द लिमिट ऑफ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको आप ट्वाइस कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। या लिमिट को क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 log sin x dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, p5 बाई p5। अब दोनों ही i के इक्वल है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अभी ऐड नहीं कर रहे, अभी सॉरी, तो हमने a माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज की, इसके अंदर i इक्वल टू हो जाएगा 2 0 पाई बाई 2 log पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू log cos x dx। ठीक है, हमने क्या किया, इसका हमने यूज किया, ठीक है, a माइनस एक्स यानी कि p4 का यूज किया है हमने यहाँ पर, बाई p4। यहाँ हमने प्रॉपर्टी p4 पहले भी यूज की थी, यहाँ p5 यूज की, फिर अगेन वी हैव यूज प्रॉपर्टी p4। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको रवि कर देता हूँ, अब शायद आपको लर्न भी हो गई होंगी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। अब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2i इक्वल टू विल बी इक्वल हो जाएगा 2i इक्वल होगा 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर भी 2 है, लॉग, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये साइन 2x बन जाए। ये 2 से हम 2 ये कैंसिल कर दिया, इस 2 से हमने 2 को कैंसिल करने के बाद i इक्वल टू हो गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब ये इसको हमने 2 लिख दिया, 2 dx, हमने कांस्टेंट टर्म को log m अपॉन n है, तो log m माइनस log n लिख दिया। log m का मतलब log 2 है, सॉरी log 2, इसको हमने लिख दिया log 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है ये आ रहा है आपका, इसको हमें यानी ये मिलता हुआ आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पर जो टर्म, ठीक है, इससे हम इससे मैच कर सकते हैं। अब हमने इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया है, इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं हमने, i इज इक्वल टू i1, इसका नाम मैंने i1 रख दिया। ये तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, log 2 है, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका, लेकिन हमें i1 को सॉल्व करना